स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल व्हाट डू यू नो अबाउट हेरिडिटी एनीथिंग either in the chat box or if you want to speak up something. क्या जानते हो आप हेरिडिटी के बारे में? Transfer of traits. Okay, very good. Transfer of traits. So transfer of traits from whom? From parents? From parents to From offspring. parents, yes. So it is transfer of traits, it is transfer of characters from parents to their offsprings. And this happens from generation to generation. हर एक generation में कुछ characters मदर से एज वेल एज फादर से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होते हैं, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी. ओके, नाउ देयर आर 99% आप देखोगे तो जो जीनोम होता है वो सेम होता है. ओके, सो व्हेन यू गो इनटू योर हायर स्टैंडर्ड्स, आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ने में जब आपको आएगा, सो 99% अगर हम देखें तो जो हमारे जीन्स हैं वो सब सेम होते हैं, लेकिन देयर इज 1% and that 1% is the variation. Okay, and जब ये वेरिएशन बहुत सालों तक accumulate होता जाता है, even small variations, बहुत negligible, एकदम minute amount में variations होते हैं. So when these variations they go on accumulating from one generation to another and from generations to generations, then it becomes evolution. ओके, सो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. हेरिडिटी बिकॉज जो भी कैरेक्टर्स है दैट नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन द ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम ईच एंड एवरी जनरेशन. एट द सेम टाइम वेरिएशंस का होना भी जरूरी है एवोल्यूशन के लिए. ओके, सो एवोल्यूशन में आपको ज्यादा कुछ है नहीं, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह नहीं है, बट आगे का जो भी पार्ट है तो उसको समझने के लिए आपको एटलीस्ट थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ऐसा पता होना चाहिए. ओके, सो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, कोर्स में नहीं है तो, लेकिन एक आउटलाइन जैसा थोड़ा पता होना चाहिए. ओके, सो मूविंग ऑन टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, वी हैव रिप्रोडक्शन, वेरिएशन एंड एवोल्यूशन. सो व्हेन वी से रिप्रोडक्शन, ये भी एक तरीके का लाइफ प्रोसेस है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. Now, this is a very important process because it is required for the continuity of life on earth. जो smallest unit होता है, species, वो species हर generation में present होनी चाहिए. So that species should be able to represent itself on earth. And that is through the process called reproduction. So why reproduction is important? Because it is required for the continuity of life on earth. ठीक है, सो जैसे कि ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसी तरह से रिप्रोडक्शन भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, so that it can propagate, it can allow the survival and the continuity of life on earth. So every living organism has the property of reproduction. Okay, so that is true. When organisms mate, they produce offsprings of their own kind, उनके जैसे ही. That is why we call this as species. So वो उनके जैसे ही offsprings को born करते हैं. They bring to the earth the offsprings of their own kind. Okay, now again, there are two modes of reproduction. You might have heard about this and learned about this in your earlier chapters. दो तरीके के reproduction है. एक है asexual reproduction. When we say asexual reproduction, so यहाँ पे gametes का कुछ काम नहीं होता है. Okay, that means body part में से ही एक parent में से ही दूसरा offspring born हो रहा है. So it is either through some modifications in the body part या फिर simple nuclear divisions. Okay, so that is asexual reproduction, जहां पे सिर्फ एक ही parent का involvement होता है.
सो ऐसे केसेस में अगर आप देखोगे तो देयर विल बी वेरी लिटिल वेरिएशंस और देयर विल बी नो वेरिएशंस एट ऑल, ओके, बिकॉज एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, so there are lot of variations observed. Why? Because two parents are involved. Okay, so male and female, two parents are involved, and because these two parents are involved, यहाँ पे genetic exchange होता है. So this genetic exchange brings about variation in the offspring. Okay, so how do variations result? It is because of the genetic recombination, because of the exchange of the genetic material between the parents. And why variations are important? मैंने आपको beginning में ही बताया कि when this variations, when it go on accumulating from generations to generations, it forms a new species or it brings about evolution. Okay, change लाता है. So that is because of variations. So this is introduction. Now we will see something more about variation. Okay, now there are a lot of differences in the variations which are produced through asexual bacteria and through sexual reproduction. Okay, so bacteria के अंदर आप देखो तो because there is involvement of only one parent, यहाँ पे अगर DNA कॉपी नंबर में कुछ गड़बड़ हो गई या कोई ऐसी सडन म्यूटेशन आ गई, then only the variation will be observed, क्योंकि because only one parent is involved. Okay, but sexual reproduction में ऐसा नहीं है. We don't know the percentage or we don't know exactly कितना genetic material exchange हो रहा है. So therefore we will have lot of variations observed in sexual reproduction. Okay, so second point आप देखोगे तो वही बोला जा रहा है, there is a great diversity in the sexual reproduction. Okay, अब जो next बात आती है कि even if there is variation, so what are the chances of survival of species with variations in the environment? क्या environment support करेगी सारे variation वाले species को रहने के लिए? So what are your opinions? I want to know from you guys. क्या आप क्या सोचते हो? Quickly. जितने भी variations हैं, so हर एक individual, हर एक species उसको support करेगी? Yes or no? With respect to the environment. Quickly, जिसको जो लगता है टाइप कर सकता है, no problem. Yes हो, no हो, कुछ भी चलेगा. या फिर नहीं पता. अच्छा कुछ तो बोलो. My question is, what are the chances of survival of species with variation in the environment? जितने भी variations हो रहे हैं, तो सबकी सब species survive करेंगी environment में कि नहीं करेंगी? Yes, ma'am. All of them will survive? No, ma'am. Okay, so now we are getting the mixed answers. So let us justify. इस चीज को हम justify करते हैं. See, कुछ वेरिएशंस अच्छे भी होंगे, कुछ अच्छे नहीं भी होंगे. अब नहीं होंगे इन द सेंस नेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, सो एनवायरनमेंट डिसाइड करता है एंड स्पीशीज की एबिलिटी डिसाइड करती है कि वो उस एनवायरनमेंट में रह सकती है कि नहीं, वो पर्टिकुलर वेरिएशन उस एनवायरनमेंट में रहेगा कि नहीं रहेगा. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वेरिएशन. ओके, कुछ कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं, एडवांटेजियस वेरिएशंस होते हैं. जैसे कि बैक्टीरियाज में आप देखोगे तो सारे बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस या एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस में या एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में नहीं रह सकते. देयर इज अ रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज है टेम्परेचर की, वो पर्टिकुलर रेंज में ही मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज विल लिव. ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया उस रेंज में ही रहेगी. लेकिन
कुछ बैक्टीरियाज में ऐसे वेरिएशन भी होंगे जो उनको एक पावर देंगे so that they can live in extreme conditions, whether it is very high temperature or whether it is low temperature. Okay, so all these variations will not survive, but yes, at the same time हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि there are certain variations which can be advantageous to the individual. Okay, I hope I'm clear with this part. डाउट है किसी को? इफ है तो यस लिख दो, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू. No, ma'am. ओके, No, नाउ ma'am. गुड. देन अब ये जो सिलेक्शन है ना वेरिएंट्स का बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, ये ही दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन. हाउ इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन आई विल टेल यू. देखो, जो भी वेरिएशन होगा वो अगर स्टेबल है, अगर वो स्पीशीज ने अपने आप को वो वेरिएशन में अडेप्ट कर लिया तो वो स्टेबल रहेगा, वो उस पर्टिकुलर जनरेशन को लिव करेगा, प्लस वो नेक्स्ट जनरेशन को ये वेरिएशन ट्रांसफर करेगा. अगेन वो वेरिएशन उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में रहेगा, नेक्स्ट प्रोजनी को वो फिर से ये वेरिएशन ट्रांसफर करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये प्रोसेस चलता जाएगा. सो अब ये जो वेरिएशन था, ये इसने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में. Now when this variation it goes on accumulating, जो मैंने पहले रिपीट किया था, when it goes on accumulating over the period of years, बार बार ये सेम वेरिएशन accumulate होता जाएगा, तो then it will form evolutionary process. Okay, so अभी आपको बार बार ये वर्ड आ रहा है एवोल्यूशन एवोल्यूशन एवोल्यूशन. ओके, सो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, उससे आप ये कनेक्ट कर सकते हो कि किस तरह के वेरिएशन की बात हम कर रहे हैं. ओके, जैसे ह्यूमंस डायरेक्टली नहीं आए, वी केम फ्रॉम एप्स. ओके, फ्रॉम एप्स टू ह्यूमंस. एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी हैव दिस डिस्कशन आल्सो. एक टॉपिक भी है हमको. सो हम डायरेक्टली एज अ ह्यूमन हम डेवलप नहीं हुए, वी केम फ्रॉम एप्स. सो उसके अंदर कुछ वेरिएशंस आते गए ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स. ऐसा नहीं 1 साल 2 साल, बट मिलियंस ऑफ इयर्स. एंड उसके बाद एक स्टेबल स्पीशीज आई जिसको अभी हम बोलते हैं ह्यूमंस. सो दैट इज एवोल्यूशन. जब वेरिएशंस बार बार अक्यूमुलेट होते जाएं ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स, ओवर द जनरेशंस, then it becomes an evolutionary process. Okay, so this was about your variation. Then we have heredity. Now this is important, you should know the definition. Especially मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, मैं इसमें भी बोलूंगी कि जब भी आप definitions आपको पूछे जाते हैं तो you have to be very specific. Whatever is given in your textbook, आपके टेक्स्ट बुक में जो भी definition दी गई है, आप ट्राई करो कि आप उसी को ही एज इट इज आप लिख रहे हो. ओके, बिकॉज 1 मार्क है, 1 मार्क में आपको बिल्कुल स्पेसिफिक रहना है, इधर यस और नो, दैट्स इट. ओके, तो इसमें ट्राई करना है कि कुछ भी ना तो ओवर इंफॉर्मेशन देनी है, ना ही मिसिंग इंफॉर्मेशन देनी है. करेक्ट वर्ड्स होने चाहिए, प्रॉपर सेंटेंस होना चाहिए. ओके, सो व्हेन वी से हेरिडिटी, इट इज द ट्रेट और द कैरेक्टरिस्टिक्स. हम किसी पर्टिकुलर ट्रेट की या किसी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं which is inherited from the parents to the offsprings, and these traits are transmitted, they can be passed on from one generation to another. Okay, still the individuals are never alike. Even if you can see and compare with your siblings, you have similarities. आप में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो सेम होंगी, इवन आपकी और आपके पेरेंट्स में भी बहुत सारी चीजें सेम होंगी, बट इट इज नेवर अलाइक. एग्जैक्टली एक जैसी नहीं होगी, एक्सेप्ट इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स. ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन. दैट इज व्हाट वी आर डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन. कितना परसेंटेज जीन एक दूसरे में एक्सचेंज हो रही है, मदर से भी एंड फादर से भी. So we don't know that percentage. Whatever is the percentage of genetic exchange, we even don't know what genes are exchanging. Okay, there are so many genes, बहुत सारी genes हैं, हमको ये भी नहीं पता कौन कौन सी genes आपस में exchange हो रही है. Okay, so variation depends on the exchange of genetic material, and that is why, see, आप देखोगे
तो 99% जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम होगा, स्टिल 1% में भी देखो आप कितना वेरिएशन मिलेगा। आपको कोई भी आपके जैसा देखने को नहीं मिलेगा। आप आपके पेरेंट्स से रिसेंबल नहीं करते हो एग्जैक्टली, आप आपके भाई बहन से एग्जैक्टली रिसेंबल नहीं करते हो। ओके, सो देर आर सिमिलैरिटीज बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। ओके, and these variations are determined by the genes. So ये जीन कहाँ होती है, जरा इसका लोकेशन बताएंगे पूरा। सेल पढ़ा होगा ना, सेल वाला चैप्टर, सो याद करो हम सेल में कहाँ जीन को ढूंढेंगे। क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, ओके। देन जीन्स के अंदर DNA. के अंदर डीएनए, यस। सो वी हैव अ सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम के अंदर there are genes, there are DNA. Okay, so this genetic material, it comes from the DNA of the parents. Full form पता है DNA का? Deoxyribonucleic acid. Yes, very good. Deoxyribonucleic acid. Okay, so ये जो DNA होता है, it has the genes, the chromosome has the genes, and there is this DNA which becomes the genetic material. Okay, so हर एक individual DNA will be the genetic material. Okay, अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा, that was all about heredity, variation, and how this herited characters are important. Okay, because one generation to another transfer होते हैं, then how variations are important and how variations can lead to evolution. So अभी आप early studies देखोगे तो अलग अलग scientists ने अपने अपने contributions दिए थे, but the first one was Gregor Johann Mendel, and he is known as the father of genetics. So इन्होंने बहुत extensive काम किया था, and it was all related with the genes. Okay, so their work highlighted the field of genetics. इन्होंने पूरा genetics के बारे में बताया था कि genetics होता क्या है, किस तरीके से experiments conduct करके scientific knowledge को mathematical knowledge के साथ में combine किया था. So initially he was not much interested into his regular studies, and so he went to the monastery. एक monastery में वो चले गए थे, and then they did lot of experiments because science was his interest, and he combined the knowledge of science and mathematics so that वो बता सके कि how these traits are expressed in each generation. This was a major breakthrough in the field of genetics because ये दोनों चीजों को, दोनों नॉलेज को, दोनों चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके जो इन्होंने रिजल्ट्स दिए थे, those were commendable. वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, and yes, even today we believe those things to happen. Of course, there are a lot of deviations, कुछ changes हैं, exceptions हैं, but at that time this was the major breakthrough. Okay, so with all these experiments, he came to conclusion with the laws of inheritance. किस तरह से the genes are inherited. Okay, and his choice of interest was pea plant. Pea plant के ऊपर इन्होंने बहुत सारा काम किया था. So initially what he chose was a pair of contrasting characters. Contrasting means two different characters in the pea plant. Okay, so say for example height of the plant, so it would be tall or dwarf, या लंबा होगा या बिल्कुल छोटा होगा. इस तरीके से उन्होंने contrasting characters दिए थे. Color of the pod, yellow or green, color of the flower, white or purple, ऐसा. Shape of the seed, round or wrinkle, इस तरह से इन्होंने बहुत सारे characters को choose करके study किया था, and
He noted down every change in the progeny, and उसके बाद he made all the analysis. Analysis is कि कितना हमको नंबर मिल रहा है हर एक जनरेशन में, क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं. ओके, सो he took this change with respect to 2 generations. Okay, 2 generations तक analysis किया and then combine किया. So the first experiment that he carried out was on the height of the pea plant. So 2 characters are visible. एक तो tall plant, दूसरा dwarf plant. Okay, so अब देखो 2 तरीके की एक particular gene में there are 2 alleles. Now, do you know what are these alleles? What do we mean by the alleles? उस समय पे ये सब पता नहीं था. These genes were called as factors. इसको factors बोला जाता था, तभी gene ऐसा word भी नहीं आया हुआ था. Okay, so these were the simple factors. So ऐसा कुछ था कि हर एक trait के 2 factors हैं. क्या factors हैं? जिनको हम बोलेंगे alleles. Every gene has 2 expressible forms. Okay, that is alleles. Now, what are these 2 expressible forms? या तो वो डोमिनेंट होगा. डोमिनेंट कौन सा कैरेक्टर होगा जो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा? दैट वुड बी द डोमिनेंट कैरेक्टर. एंड रेसेसिव विल बी द कैरेक्टर व्हिच इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन फ्यू प्रोजेनिes. ओके, सो आई विल राइट इट आउट फॉर यू. Every gene has 2 expressible forms. Okay, this becomes allele. Okay, so what are these alleles? It could be dominant allele, okay, which is more expressed or found, and another one is recessive allele, which is less expressed or found in nature. Clear? देखो यहाँ ये छोटे छोटे टर्म्स अच्छे से समझ में आने चाहिए, then only you will be able to perform a cross. Okay, so first thing that he studied was, किसी को भी अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो please ask. हाँ, even in the middle of the lecture you can ask. There's no problem. You can write it in the chat box. Anything, कुछ भी जो नहीं समझ में आ रहा है, not understood, or you have a doubt, whatever it is, please ask. Okay, don't feel ऐसा कुछ शर्म फील नहीं करनी है. नहीं समझ में आता है पूछ लेना. Okay, so what he observed in the first part was the height of the pea plant. अब यहाँ पे हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, 2 अलील्स हैं. एक तो टॉल है, दूसरी ड्वार्फ है. अब जैसे कि मैंने बोला कि डोमिनेंट और रेसेसिव होता है, तो हम हमेशा डोमिनेंट वाली अलील का इनिशियल लिखेंगे. तो यहाँ पे जो डोमिनेंट अलील थी वो थी मेरे टॉल प्लांट के लिए, इसीलिए मैंने कैपिटल टी लिखा है. उसका काउंटर पार्ट है रेसेसिव, दैट इज ड्वार्फ, एंड उसके लिए मैं डी नहीं लिखूंगी, स्मॉल टी लिखूंगी. ओके, सो देन इफ यू सी माय पेरेंट्स, द पेरेंट्स ओवर हियर विल बी कैपिटल टी बिकॉज डिप्लॉयड होता है. ओके, हैप्लॉयड नहीं होगा. सो देयर आर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ऐसा आप पढ़ते हो ना, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, सो हर एक इंडिविजुअल के अंदर देयर विल बी द पेयर. तो यहाँ पे भी हम यही लेंगे, 2 capital T and 2 small t. Okay, now when the gametes are formed, अब gametes हमेशा haploid होते हैं, half in the number. So इसीलिए हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो t है इसकी जगह पे हमने केवल एक ही t लिया है, कैपिटल T, एंड यहाँ पे भी स्मॉल t. So what we have is capital T and small t. So now I want answer from you people. What would be my F1 generation? TT, big T and small t. Big T and small t, capital T and small t. Okay, so what would be the trait? Tall, dwarf या medium? Tallness. Tallness, yes. So यहाँ पे मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया था कि फर्स्ट जनरेशन में the genotype was capital T and small t. ओके, जो गैमेट से हमको जो जनरेशन का जो जीनोटाइप मिला था वो था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी.
and all the plants were tall in nature. कोई भी मीडियम नहीं था, सब टॉल प्लांट्स मिले थे. Now this capital T and small t, when it was self fertilized, okay, self fertilized means इसका मतलब है कि जो जनरेशन यहाँ पे मिली, ओके, यहाँ पे हमको मिला कैपिटल T एंड स्मॉल t, फिर उसी जनरेशन को जब हमने सेल्फ फर्टिलाइज किया, ओके, सो देन वी विल गेट F2 जनरेशन. सो क्या मिलेगा हमको F2 जनरेशन में? What all combinations will you get? You will get 2 capital T. Yes, you have to simply multiply. ठीक है, आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है. सो ये t को ये t के साथ, फिर ये कैपिटल T को स्मॉल t के साथ. So I'll write it over here, capital T small t, then again capital T small t, and lastly I will have small t small t. Okay, इस तरीके के 4 ऑफस्प्रिंग्स मुझे देखने को मिलेंगे F2 जनरेशन में. अब इन सब का ये जीनोटिपिक रेशियो है. ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, T कैपिटल T, ये सब इसका जीनोटिपिक रेशियो है. अब हम फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे. फिनोटिपिक मींस आपको कैरेक्टर बताना है. बाहर से आपको क्या दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, ड्वार्फ दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, दैट विल बी, जो आपको बाहर से दिखेगा उसको हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो. ओके, सो फिनोटिपिक रेशियो में आपको मिलेगा कैपिटल T विल बी माय टॉल प्लांट, कैपिटल T स्मॉल t विल बी माय टॉल प्लांट, capital T small t again will be my tall plant, and capital T and small t will be my dwarf plant. So in a way what I am getting is 3 tall and 1 dwarf. Okay, ये मेरे को मिल रहा है. The ratio is 3:1. This is my ratio, 3 tall and only 1 dwarf. ओके, सो अब इसको एनालिसिस अगर आप करोगे तो दिस विल सजेस्ट दैट भले ही F1 जनरेशन में ड्वार्फ कैरेक्टर हमको देखने को नहीं मिले, वी कुडंट सी द ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक इन द F1 जनरेशन, बट इट वाज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड बिकॉज वी हैड सीन 1 dwarf plant to be present in the F2 जनरेशन. F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल देखने को मिला, ड्वार्फ देखने को नहीं मिला, लेकिन ये कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हुआ और F2 जनरेशन में हमको एक ड्वार्फ प्लांट देखने को मिला. ओके, सो क्या बोल सकते हैं इससे हम? बोथ टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेड्स वर इनहेरिटेड इन द F1 प्लांट. F1 जनरेशन में दोनों ही ट्रेड्स इनहेरिट हुए थे, लेकिन जो एक्सप्रेस हुआ दैट वाज ओनली द टॉल ट्रेट. अंडरस्टूड? कुछ डाउट्स है यहां तक? No, ma'am. No. Okay, good. Then let us move to the next thing. Okay, so now we have to conclude this inheritance of one character. Okay, so there are both capital T and capital T and capital T and small t, both stands for the tall plant, and when both the alleles are recessive, that is small t, then only we will get a short plant. So हम ऐसा बोल सकते हैं कि even if there is one copy of capital T, अगर एक कॉपी है dominant gene की, dominant allele की, that is also enough to make the plant tall. ओके, अगर शॉर्ट प्लांट चाहिए तो शॉर्ट प्लांट होने के लिए दोनों कॉपीज को स्मॉल होना पड़ेगा. सो व्हाट वी कैन से इज दैट T इज डोमिनेंट, कैपिटल T इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल t. ओके, सो जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो ही हमेशा सबसे पहले रिप्रेजेंट होगा, एक्सप्रेस होगा. देन फिनोटिपिक रेशियो मैंने आपको बता दिया, जो आपको बाहर से दिख रहा है. So बाहर से आपको जो दिख रहा है that will be 3 tall plants and 1 dwarf plant. So you will have the ratio 3:1. Genotypic ratio बोलेंगे तो मतलब क्या चेंज है उसके जीन्स में. So that is 1:2:1. 1 is for capital T, 2 is for capital T small t, and another 1 is for small t.
ओके, उसी तरह से आपको एक फिगर दिया हुआ है 9.4. सो इफ यू कैन सी दैट फिगर, वहां पे भी आपको यही देखने को मिलेगा, पर्पल कलर विल डोमिनेट ओवर व्हाइट फ्लावर कलर. ओके, इसी तरह से ही same way you have to proceed. Inheritance of one character, the same way you have to choose the parents. Parents लिख दिया आपने, gametes लिखने हैं, gametes के बाद combination होके first generation होगा. first generation को आपको self fertilize करना है. self fertilization के बाद में you will get F2, second generation. Okay, and then उसके बाद में you have to express phenotypic and genotypic ratio. Clear? यहां तक कोई डाउट्स है? No, ma'am. नो. ओके, वेरी गुड. देन अब सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज को हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो चेंज है वो ये है दैट वी विल बी ऑब्जर्विंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर्स. सो वहां पे जो हमने देखा दैट वाज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ द पीपल. ओके, अब यहाँ पे हम दो अलग अलग चीजें देख रहे हैं. एक तो है कि हम कलर देख रहे हैं, राउंड. ओके, एंड उसका जो काउंटर पार्ट है दैट इज माय wrinkled. ओके, राउंड इज द शेप, सॉरी शेप देखेंगे और कलर देखेंगे पॉड का. तो यहाँ पे जो शेप है वो है राउंड. राउंड इज डोमिनेंट, wrinkled इज रेसेसिव. देन कलर में आप देखोगे तो येलो इज डोमिनेंट, कैपिटल Y, येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन कलर इज रेसेसिव. ओके, सो देखो पेरेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आपको इस तरीके से नहीं लिखना हो तो यूजुअली हम ऐसे भी लिखते हैं इसको. RRYY, ये एक पेरेंट हो जाएगा और दूसरा विल बी और स्मॉल r स्मॉल y. इस तरह से भी आप लिख सकते हो. ठीक है, सो ये जो पहले वाला है कैपिटल वाला, ऑल इन कैपिटल्स, दिस इज राउंड एंड येलो, एंड द अनदर वन विल बी wrinkled green. Then what is our next step? Gametes. Okay, formation of gametes. So gametes में अब यहाँ पे आप देखोगे कि because हम दो characters ले रहे हैं. Okay, so we have 4 in the number. दो characters है ना, एक character के दो alleles, एक जीन की 2 alleles. So यहाँ पे 4 हो जाएंगी total. Okay, so यहाँ से अगर आप देखोगे तो this will be only 2 will be taken. Individually एक ही होगी. So this will be capital R, capital Y, and from here we are taking small r and small y. And when you fuse these gametes, you will get F1 generation, first filial generation, F1. Okay, so F1 में आपको क्या मिलेगा? You will get round and yellow. Okay, that means F1 के अंदर अगर आप देखोगे तो only dominant character is expressible. So this will be R and small r and Y and small y. But all will be round and yellow. Okay. Now next is self-fertilization. So self-fertilization में ये जो आपको capital R, small r, capital Y, small y मिला है, उसी को ही आपको same के साथ में multiply कर देना है. Okay. So what you will do is you will multiply it. तो ये आपके 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनेंगे. ओके, चेकर बोर्ड यू कैन मेक इट इफ यू वांट, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू मेक इट ऑन योर ओन, यू कैन मेक इट डेफिनेटली. मैंने यहाँ पे आपको गैमेट्स मेंशन किए हैं. सो अब ये जो चीज थी राउंड येलो, व्हेन इट वाज सेल्फ फर्टिलाइज्ड फॉर द F2 जनरेशन, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आपको मिलेंगे. क्या मिलेंगे? एक तो आपको कैपिटल R कैपिटल Y मिलेगा, दूसरा आपको कैपिटल R स्मॉल y मिलेगा, तीसरा आपको स्मॉल r कैपिटल Y मिलेगा, एंड फोर्थ वन जो आपको मिलेगा दैट विल बी स्मॉल r स्मॉल y. ओके, सो ऐसे आपको जब चेकर बोर्ड आप बनाते हो तो 4 इस साइड, 4 ऑन द हॉरिजॉन्टल साइड, 4 ऑन द वर्टिकल साइड, ये चारों आपको लिख देने 1 2 3 को 1 2 3 को, एंड देन यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई. सो ये जब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे आपको एक टेबल मिल जाएगा, पूरा एक टैबुलर फॉर्म में आपको मिल जाएगा. एंड नाउ वी विल जंप ऑन टू द
एनालिसिस कि क्या हमको ये एनालिसिस मिले थे। सो देखो F2 जनरेशन में 9, ये जो चेकर बोर्ड है ना 4 into 4 16 बिकॉज दीज आर 4 gametes, सो हॉरिजॉन्टल साइड भी 4 रहेंगे, वर्टिकल साइड भी 4 रहेंगे, सो 4 4 16। वहां पे आपको सिर्फ 4 मिल रहा था मोनो हाइब्रिड में, यहाँ पे बिकॉज 2 कैरेक्टर्स हैं तो 4 into 4 4 4 16, इस तरह से आपको 16 टोटल रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आउट ऑफ दिस 16 9 will be my round and yellow. Okay, so when I'm speaking about 9, it would be okay, then there will be 3 with round and green. Okay, then there will be another 3 with wrinkled and yellow, and there will be only 1 with wrinkled and green. Okay, इस तरह से आपको जो रेशियो मिलेगा that will be 9:3:3:1, ये आपको रेशियो मिलेगा 9:3:3:1। सो टोटल अगर आप देखोगे तो 9 + 3 12 + 3 15 + 1 16, ये आपको यहाँ पे टोटल नंबर टैली हो जाएगा 16 का। ओके, सो व्हेन वी आर स्टडिंग 2 कैरेक्टर्स, what ratio we will be getting is 9:3:3:1. Okay, clear है? Yes, ma'am. Others? Yes, ma'am. Yes. Okay, good then. So even if it is asked, you will be able to draw this checkerboard, and आपको ये जो 9:3:3:1 का रेशियो है वो आपको as it is explain करना है, that's it. Okay, so then next one is how do these traits gets expressed, sorry. So कैसे expressed होते हैं ये हमने देखा था, we have looked upon the mechanism of heredity from parent to offspring. Okay, so how it goes from parent to the offspring, see your cellular DNA, it will code for a particular protein. आपका जो cellular DNA है it will code for a particular protein in a cell. अब हर एक प्रोटीन के लिए हर एक जीन होती है और हर एक जीन के लिए एक एंजाइम होता है। ओके, सो वी हैव अ सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। सेंट्रल डॉगमा का मतलब क्या है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ओके, सो जितना भी ये प्रोटीन बनना है उसका जो कंट्रोल है वो होता है डीएनए के पास। डीएनए डायरेक्ट करता है कि किस तरीके का प्रोटीन बनाना है सेल के अंदर। ओके, सो हर एक प्रोटीन की खुद की एक जीन होती है और हर एक जीन के लिए एक एंजाइम होता है। ओके, सो जैसे कि हम अगर टॉलनेस और शॉर्टनेस की बात कर रहे हैं, so this tallness and shortness it would be present in the plant because of some protein. ये प्रोटीन की वजह से या तो प्लांट टॉल होगा या शॉर्ट होगा। अब प्रोटीन के कारण जीन होगी, जीन भी होगी टॉलनेस या शॉर्टनेस, और उसके करस्पॉन्डिंग एक एंजाइम होगा जो कि सिग्नल कंडक्ट करेगा और जो कि रिएक्शन करेगा so that the plant is either tall or it is short. Okay, so what you need to remember is for every protein there is a gene and for every gene there is an enzyme. Okay, so this gene controls the characteristic of trait in an organism. जो भी traits हैं वो इस genes के through control होते हैं। Okay, now what is important to note that each germ cell must have only one gene set. जैसे कि आपने देखा था gametes. Okay, so gametes के अंदर अगर हमारे पास 2 थे तो हम 2 नहीं ले रहे थे, हम केवल एक ही गैमेट ले रहे थे। ठीक है, हमारे पास टी था, कैपिटल टी था, लेकिन हम ले रहे थे सिर्फ एक ही टी। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि हर एक जर्म सेल विल एक्सेप्ट और इट विल हैव ओनली वन जीन सेट। ओके, सो दैट इज वेयर दे कैन मूव, दे कैन सेग्रीगेट देमसेल्व्स। ओके, सो अब ये जो जीन है अगर ये
जीन्स को एक्सप्रेस होना है। ओके, सो अगर हम ये बोलते हैं कि ये जितनी भी जीन्स हैं, इफ दे आर इनहेरिटिंग अ सिंगल होल जीन सेट फ्रॉम द पेरेंट, फ्रॉम ईच पेरेंट, पूरी पूरी अगर ये दोनों की दोनों अलील्स आ जाती हैं तो इनहेरिटेंस काम नहीं करेगा। नो इनहेरिटेंस विल वर्क इफ टू, बिकॉज टू ट्रेड्स कैनॉट वर्क टुगेदर। ओके, डोमिनेंट भी देखने को मिलेगा, रेसेसिव भी मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, दोनों ट्रेड एक दूसरे के साथ साथ में रिप्रेजेंट नहीं होंगे, या तो डोमिनेंट होगा या रेसेसिव होगा, दैट्स इट। ओके, सो इट इज बिकॉज द गैमेट्स आर सेग्रीगेटिंग, द गैमेट्स आर सेपरेटिंग। ओके, सो सेकेंड पॉइंट में आपका वही लिखा हुआ है, द टू कैरेक्टरिस्टिक्स कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई would then be linked to each other and they cannot be independently inherited. It should be via capital Y. Okay, so this is, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये दो जीन्स हैं, ये दोनों की दोनों एक साथ आती हैं, तो they will not be able to independently inherit it. Okay, so each cell is having two copies of each chromosome and one comes from male and another comes from female. Okay, so every germ cell will take one chromosome from each pair. अब ये या तो मैटरनल होगा या पैटर्नल होगा। ओके, या मैटरनल होगा या पैटर्नल होगा, बट हर एक जर्म सेल विल टेक ओनली वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर। ओके, सो जब टू जर्म सेल्स कंबाइन होते हैं, देन दे विल रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द प्रोजेनी। ओके, दैट मींस अगर हम हमारी बात करें तो कितने क्रोमोसोम्स हैं हमारे में, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर? 23. 23 पेयर्स, वेरी गुड। सो 23 पेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव टोटल 46 क्रोमोसोम्स, 46 in males and 46 in females. Okay, 23 pairs. So 46 in males, 46 in females. अब पूरा का पूरा 46 मेल्स में से भी नहीं आएगा, पूरा का पूरा 46 फीमेल्स में से भी नहीं आएगा. So it will be half the number. That means 23 from the male and 23 from the female. When you combine this 23 and 23, you will get 46. That is 23 pairs of chromosomes. So this is how the normal number of the chromosomes in the progeny is maintained. Okay, 23 from the male, 23 from the female. So that is why gametes are always haploid in nature, half the number. Gametes हमेशा haploid होते हैं, कभी भी diploid नहीं हो सकते. Okay, because otherwise जो offspring है उसका number जो है वो जो उसका genetic composition है वो बिल्कुल change हो जाएगा, जो कि नहीं होता है. So it is because the half from the male and half from the female combines to restore the normal number of the chromosome. Okay, so that was the mechanism explained from the results carried out by Mendel, or from the experiments carried out by Mendel, and he stated that it is followed by all sexually reproducing organisms. जितने भी sexually reproducing organisms होते हैं उनमें इसी तरह का inheritance pattern चलता है. Okay, that means half number from each of the parents. So any doubts so far? No, ma'am. No. Okay, very good. Then we have another interesting topic, that is sex determination in human beings. Okay, very, very important. It is often asked in your long questions also. Okay, so how the sex of the fetus, the sex of the baby is determined in humans. Let us see. Males and females, they both have 23 pairs of chromosomes. Human beings, we have 23 pairs of chromosomes. In that 23 pairs, we have 22 pairs as autosomes. Autosomes की बात करें तो क्या है characteristic? Anybody? What do you mean by autosomes? नहीं पता. Vegetative cells same होंगे हर एक में. Okay, chromosomes. This 22 pairs of chromosomes are same in each and every individual. There is one pair
which we call it as sex chromosomes. That is the 23rd pair. Now this 23rd pair, it is different. In males, we have, sorry, let us first see in the females. So in the females, they have 2 X chromosomes. That 23rd pair contains 2 X chromosomes, whereas the male contains 1 X and 1 Y chromosome. Okay. So at the time of sex determination in the fetus, when males and females, when they establish a relationship, so then what happens? Pura genetic exchange to hoga hi hoga, but then again the gender, the sex of the newborn will also be determined. So that is dependent on the males. Why on the males? Because males के पास 2 अलग अलग copies हैं. एक तो है X chromosome और दूसरा है Y chromosome. Okay. But if you can see the female, so she is having only 2 X chromosomes. So मैंने बताया था जब भी gametes बनते, so this gametes would be half the number. Okay. So एक पेयर है XX फीमेल में, उसका हाफ द नंबर अगर आप करोगे तो यू विल गेट 1 X क्रोमोसोम. ओके. फीमेल के पास दोनों सेम क्रोमोसोम्स. ओके. सो दोनों ही X कॉपीज है तो कोई भी एक X कॉपी आएगी. ओके. Males on the other hand, if you can see, they have 2 copies. One is X and one is Y. Okay. So now it depends whether X is fusing with X or X is fusing with Y. Okay. So अब देखो यहाँ पे आप फिगर में देखोगे तो if the gamete X of the female fuses with the gamete X of the male, so X plus X will give you female. So it is the female offspring born. But if the X of the female fuses with the Y of the male, then you will get a male child. Okay. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Okay. So it depends whether the X of the female fuses with the X of the male or Y of the male. So generally, who determines the sex of the child? Who is responsible? Father. Father is responsible क्योंकि father के पास ही 2 अलग अलग copies हैं X and Y. Okay. फीमेल के पास तो है ही नहीं, फीमेल के पास एक X है तो वो X तो आनी ही आनी है, लेकिन फादर के पास 2 कॉपीज हैं, एक X और Y. सो इट डिपेंड्स कि कौन सा फ्यूज कर रहा है फीमेल की X के साथ. ओके. सो इट इज ऑलवेज द मेल दैट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड एंड नॉट द फीमेल. क्लियर? Yes, ma'am. Then these are your textbook questions only. Okay. एक और यहाँ पे आप देखो थर्ड क्वेश्चन, अगर आप इसमें देखोगे, a man with blood group A marries a woman with blood group O and their daughter has blood group O. So is this information enough to tell you which of the trait, blood group A or O, is dominant, Y or Y not? Come on, who will answer? Ma'am, blood group O is dominant. O is dominant, sure. Yes, ma'am. कहीं पढ़ा था कि बुक में देखा है कहीं? नहीं मैम, वो डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होता है ना रेसेसिव के होने के बावजूद, पर रेसेसिव डोमिनेंट के होने के बावजूद एक्सप्रेस नहीं होता है. हाँ, तो अब इसमें ए और ओ में कौन सा डोमिनेंट होगा? ओ होगा. वो नो, सी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, हमारा जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. ओके. सो इसमें क्या होता है? ओ इज रेसेसिव. ओके. एंड ए एंड बी इज डोमिनेंट. ओके. सो ए हमेशा डोमिनेंट होगा, बी होता तो बी भी डोमिनेंट होता, बट ओ इज ऑलवेज रेसेसिव. ओके. सो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैन का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज ए. ओके. सो अब ए है
तो ए के साथ में क्या बनेगा, ए बनेगा या फिर ए ओ भी बन सकता है। ओके, ए और ए ओ, लेकिन एक्सप्रेस तो ए ही करेगा क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप है ए। तो मैन का ब्लड ग्रुप ए होगा या फिर ए ओ होगा। लेकिन मदर का जो ब्लड ग्रुप है, ऐसा बोला है, मैरीज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप ओ। सो मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो होगा ओ ओ। ओके, क्योंकि वो रेसेसिव है तो 2 कॉपीज होंगी तो ही रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो वुमन का होगा ओ ओ। ओके, सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज देयर दैट डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ। सो अगर पॉसिबल है कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए ओ होता है और वुमन का ओ ओ होता है, तो देन द डॉटर विल हैव द ब्लड ग्रुप ए ओ। ओके, it is possible, but this information is not enough to tell us what is dominant. Okay, because AOB है हमारे पास. Okay, so whether they have AA or AO we don't know. Father की बात हो रही है, AA या AO हमको पता नहीं है. So of course this information is not enough, but whenever you are finding out the blood groups, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ABO blood group, ABO blood group जो कि humans में रहता है, उसमें O is always recessive, the other blood groups are dominant over O. Okay, देखो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि जिसका ब्लड ग्रुप O होता है ना, तो O वाला किसी को भी ब्लड दे सकता है क्योंकि वो रेसेसिव है। ओके, तो वो किसी को भी ब्लड अपना दे सकता है, लेकिन जब लेने की बारी आती है तो O को सिर्फ O वाला ही ब्लड ग्रुप दे सकता है। ठीक है, आया समझ में? सो O इज यूनिवर्सल डोनर। ओके, O इज यूनिवर्सल डोनर, देने को किसी को भी दे सकता है, लेकिन जब ब्लड लेने की बारी आती है तो O will always have to take blood from O blood group person. Clear? Yes. Okay, यहाँ तक कोई confusion? This is important question. Sex determination in humans. So you should be able to know किस तरह से आपको find out करना है। वो chromosomes जैसे ऊपर दिखाए हुए थे, इस तरीके से आपको chromosomes दिखा के आपको workout करना है, and then you have to write in your answer as well. Okay, and blood group भी इसी तरीके से आप easily find out कर सकते हैं। आपको 2 blood group दिए गए हैं, offspring का blood group पूछा गया है, तो जैसे कि बाकी सब डोमिनेंट होंगे और वो होगा रेसेसिव, तो उस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ये और ये। ठीक है, ए है, ओ है, ए बी है, ए जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बेसिस पे आप चाइल्ड का ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव इज एवोल्यूशन। ओके, सो एवोल्यूशन में जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला इतना कुछ ज्यादा है नहीं, और इवन गुजरात बोर्ड वालों को भी काफी सारा पोर्शन डिलीटेड है। सो लेट अस मेक इट वेरी जनरलाइज्ड, इसको हम बहुत ही जनरल कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन को। ओके, सो ये जो एग्जांपल है इसमें आपको दिया गया है कि किस तरीके के वेरिएशंस सरवाइव होते हैं एनवायरनमेंट में। ओके, सो जैसे कि फर्स्ट जो आप देख रहे हो, ये जो फर्स्ट आप फिगर देख रहे हो, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक ग्रीन वेरिएशन था, कलर का ग्रीन बीटल था। सो ये ग्रीन बीटल क्रोज को दिखा नहीं, इसीलिए वो बच गया पॉपुलेशन में, और बिकॉज वो पॉपुलेशन में बच गया तो नेक्स्ट जनरेशन में वो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करने लगा। सो इन दैट वे द ग्रीन कलर बीटल became dominant over the red color beetle. Okay, then again there was another example where you can see you have blue colored beetle and accidentally all the red colored beetles were killed by elephant foot. Okay, so यहाँ पे अगर आप देखोगे तो और कोई चांस नहीं था, बट ब्लू कलर बीटल बच गए थे, तो जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसमें सिर्फ ब्लू कलर बीटल्स वर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ओके, सो जो पहले की सिचुएशन हमने देखी उसमें यह था कि जो रेयर वेरिएशन था, जो ग्रीन कलर का वेरिएशन था वो रेयर वेरिएशन था, एंड इट केम आउट टू बी अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन द पॉपुलेशन, क्योंकि वो बच गया था इसीलिए वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बन गया आगे की पॉपुलेशन के लिए। ओके, देन दिस फॉर्म्स द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। बोलने का मतलब ये है कि जो वेरिएशन खुद को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेगा एंड जनरेशन टू जनरेशन खुद को एक्सप्रेस भी करेगा, सो दैट वेरिएशन
will form the basis of evolution. Okay. Now, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है evolution को डिटरमाइन करने के लिए, वो है natural selection. ओके, एनवायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी पर्टिकुलर टाइप का वेरिएशन है, अगर वो एनवायरमेंट से एक्सेप्टेड नहीं है, अगर एनवायरमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, सो देन इट विल नो लॉन्गर बी एबल टू लिव इन दैट एनवायरमेंट. जब अगर वो उस एनवायरमेंट में रहेगा ही नहीं, तो वो आगे की जनरेशन के लिए खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाए. ओके, सो दैट इज द थिंग दैट नेचुरल सिलेक्शन, nature, environment plays a very important role in directing the evolution. evolution होगा कि नहीं होगा, वेरिएशन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कि नहीं करेगा, वो जनरेशन टू जनरेशन रहेगा कि नहीं रहेगा. सो ये जो डिटरमाइन करता है वो होता है नेचुरल सिलेक्शन. ओके, सो जो वेरिएशंस ने खुद को अच्छे से अडेप्ट कर लिया, वो एनवायरमेंट, वो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रहेंगे. दे विल बी फिट इनफ टू लिव इन दैट पर्टिकुलर environment. Okay, then this is something, another situation which is given to us, and this situation tells that कि पहले रेड कलर के बीटल्स थे, फिर कुछ एक फेज ऐसा आया जहाँ पे जो ट्री था वो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिल पाए, तो जो बीटल की जो साइज थी वो छोटी हो गई. सो एक दो जनरेशन तक ये साइज छोटी हो गई. फिर जब ट्री को वापस से न्यूट्रिशन मिलने लग गया, मिनरल्स एंड वाटर सब एडिक्वेट क्वांटिटी में मिलने लग गया, तो बीटल्स जो थे वो खुद ही अच्छे से फिर से ग्रो होने लगे. ओके, सो आप क्या बोलोगे, इसमें कोई न्यू वेरिएशन आया या नहीं आया, क्या बोल सकते हो इसमें? ये पढ़ा हुआ है या फिर ये इंटरप्रिटेशन के साथ आप क्या अपने हिसाब से आप क्या कमेंट कर सकते हो? वेरिएशन आया कि नहीं आया, कितना बताना है आपको? देखो, पहले रेड कलर के बीटल्स थे, अच्छी खासी साइज के थे. देन एक ऐसा पीरियड आया जहां पे मान लो ट्री को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया. सो बीटल्स तो थे, लेकिन थोड़ी उनकी साइज छोटी हो गई थी. फिर एक दो जनरेशन के बाद जब सिचुएशंस फिर से फेवरेबल हो गई, फिर से अच्छे खासे बड़े बीटल्स ग्रो होने लग गए. तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे? और अगर बोलेंगे भी तो फिर किस तरीके का वेरिएशन बोलेंगे, या तो नहीं बोलेंगे? एनीबॉडी? मैम एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण ऐसा हुआ. यस, सो ये जो वेरिएशन हुआ, ये हुआ एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण, लेकिन यहाँ पे कोई जेनेटिक कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ. ठीक है, सो ऐसी जगह पे इस चीज को हम बोलेंगे एक्वायर्ड ट्रेट्स. ये एक्वायर्ड था, बाहर से उसको मिला था, क्योंकि ट्री के पास जो ट्री था उसको खुद को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए बीटल्स भी जो थे वो माल नरिश्ड थे. They were themselves not getting adequate nutrition from the trees. Okay, so वो malnourished हो गए थे for the time being. जो उनका जो generation था that was malnourished, वो साइज में छोटे हो गए थे. लेकिन जैसे situations favorable हो गई, तो वो वापस से उसी तरीके से जैसे पहले थे वैसे ग्रो होने लग गए. ओके, सो दैट वाज द चेंज विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट. ये कंटिन्यूअसली वैसी की वैसी स्पीशीज नहीं मिली हमको, लेकिन ये जो चेंज था ये एक्वायर्ड ट्रेट था. ओके, सो दो तरीके के ट्रेट्स होते हैं हमारे पास, दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एक तो जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स. इनहेरिटेड मींस हर एक जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रेट ट्रांसफर हो रहा है. दूसरा एग्जांपल है एक्वायर्ड ट्रेट्स. ओके, सो यहाँ पे देखो, जो लास्ट एग्जांपल हमने देखा उसके अंदर से हम ये बोल सकते हैं कि the weight of the beetle was reduced, the size of the beetle, the weight of the beetle was reduced because of starvation, because of malnourishment, because they were not getting adequate food. Okay, but इससे उनका जो DNA का composition है वो change नहीं होगा. Their DNA composition or their genetic composition will not change. Okay, so the reason is again that these germ cells are made in the specialized reproductive tissues. Okay, so हम ये बोल सकते हैं कि low weight is not a trait that can be inherited by the progeny. Low weight एक ये जो characteristic है ये inherited नहीं होगी.
ओके, सो हमने देखा कि भले ही कुछ जनरेशंस ऑफ बीटल लो थी वेट में बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, बिकॉज उनको फूड नहीं मिल रहा था, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि एवोल्यूशन होने के लिए हमको वेरिएशंस चाहिए, और ये जो वेरिएशंस है दैट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस। तो यहाँ पे हमको ऐसा देखने को नहीं मिला, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हमको बीटल्स में लो वेट देखने को मिला, बट देन वापस वो स्टेबलाइज हो गया। सो ऐसी चीज को हम एवोल्यूशन नहीं बोल सकते हैं। Okay, so that is the difference between the acquired and the inherited traits. I won't be going much into the detail because some part is also deleted from this thing. Okay, so आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, acquired is what you are getting from the environment, inherited is what you are getting from your parents. Okay, so these two things are important for understanding the heredity and genetic. These two things are important for studying the process of evolution, for studying the course of evolution. आपको heredity और आपको genetics दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, then only you will be able to study evolution. So evolution अगर आप देखोगे तो this was being started by Charles Darwin. He was 22 years old and he set out for a voyage. एक expedition पे वो चले गए थे जहाँ पे he explored the islands of South America, and वहां पे उन्होंने ये evolution related बहुत सारे study किए थे. Okay, so there were the birds, now they are known as Darwin's finches. एक sparrow जैसी birds होती हैं, वो अलग अलग ऐसी birds देखी थी, तो सब finches ही सॉरी थी तो सब वो स्पैरो जैसी बर्ड्स ही, लेकिन उनकी जो फिंचेस थी, उनकी जो बीक्स थी वो अलग अलग थी. सो ये जो बीक्स थी वो मॉडिफाई हुई थी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स. ओके, क्योंकि वो एक ही आइलैंड पे रह रही थी, तो अब वो एक ही आइलैंड पे अगर सब लोग एक ही जैसा खाना खाते हैं तो बहुत सारा कॉम्पिटिशन होगा, एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज वुड बी एलिमिनेटेड आउट, वो मर जाएगी कॉम्पिटिशन. ओके, सो क्योंकि अगर सब एक ही तरीके का खाना खा रहे हैं तो वो एक ही जगह पे कंपटीशन बढ़ जाएगा. सो अब उन्होंने क्या किया, खुद को अडेप्ट कर लिया, इस तरीके से अडेप्ट कर लिया कि उनकी जो बीक्स है वो अलग अलग शेप की देखने को मिली, एंड दिस सजेस्टेड कि बिकॉज दे वर लिविंग ऑन द सेम प्लेस, वो एक ही जगह पे रह रही थी, तो उन्होंने अपनी फूड हैबिट्स को बदल दिया. कोई इंसेक्ट ईटर हो गई, ठीक है, कोई लीव्स खा रही है, कोई कुछ और खा रही है, इस तरीके से अलग अलग चीजें उन्होंने अपने फीडिंग हैबिट्स में इनकॉर्पोरेट कर दी. ओके, सो दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू नेचुरल सिलेक्शन. ओके, this is with respect to the environment, with respect to the nature. The selection came in this finches. Okay, so natural selection is very much important for evolution. Okay, and then next we have is origin of life. So जो डार्विन की थियोरी है, इसमें एवोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि कैसे सिंपल चीजों में से कॉम्प्लेक्स चीजें इवॉल्व हुई, चेंज हुई कॉम्प्लेक्स चीजें. एंड मेंडल की जो स्टडीज हैं दैट वाज ऑल विथ रिलेटेड टू द जेनेटिक्स, हाउ द ट्रेट्स गॉट एक्सप्रेस्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ओके, लेकिन इन दोनों का जो कनेक्शन है, दोनों ही ऐसा नहीं बताते हैं कि लाइफ कैसे आई अर्थ पे. ओके, दैट मीन्स क्या ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ. सो दैट वाज बीइंग गिवन बाय the scientist JBS Haldane, and उनकी जो स्टडीज थी उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया, ऐसा हाइपोथेसाइज किया that the life must have developed from simple inorganic molecules and later it got evolved into complex organic molecules. So simple inorganic molecules में से life बनी, and soon after it was formed बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस आए, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए, जिसकी वजह से एक स्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, एंड नाउ वी हैव अ लाइफ ऑन अर्थ. सो उस समय की जो कंडीशंस थी अर्थ पे, उस समय की जो कंडीशंस थी, जो एटमॉस्फेयर था, उससे धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने को लगे. आपस में वो इंटरैक्ट करने लगे मॉलिक्यूल्स. सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे वो आपस में इंटरैक्ट करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने लगे, एंड दैट इज हाउ द लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन Earth. Okay, so this was the chemical synthesis, because
सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। ओके, डायरेक्ट कोई स्पीशीज नहीं आ गई, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में से धीरे धीरे स्पीशीज बनने लगी। सो दिस वाज बिकॉज ऑफ द केमिकल सिंथेसिस। ओके, एंड द सेम एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय स्टैनली एंड मिलर। ये जो भी हाइपोथेसाइज किया था हेल्डेन ने, तो उसको प्रूफ करने के लिए स्टैनली और मिलर, सॉरी यूरी एंड मिलर, ओके, Stanley L. Miller and Harold C. Urey. So this is Urey and Miller experiment. So they conducted the same experiment और उन्होंने वैसा ही एक सेटअप बनाया लेबोरेटरी में, जो कि उस समय पे जो एटमॉस्फेयर था वही सब क्रिएट किया, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड लेके, बट नो ऑक्सीजन। ओके, हाइड्रोजन था, मीथेन था, अमोनिया था, बट ऑक्सीजन नहीं था। सो ऐसा सेम टू सेम एटमॉस्फेयर क्रिएट किया एंड देन कंटिन्यूअसली वो जो उनका सेटअप था उसको हीट प्रोवाइड किया। ओके, it went up to 100 degree centigrade and lightning होने लगा, and because by the end of the week, because of this atmosphere created, धीरे धीरे कार्बन बनने को लगा and then simple compounds बनने लगे from carbon, then amino acids were formed, amino acids से protein molecules बनने को लगे, और ऐसे धीरे धीरे करके the life started to form on earth। फिर धीरे धीरे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आए एंड देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड देन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बनने लगे। ओके, सो दिस इज हाउ द लाइफ केम ऑन अर्थ। अब ये स्पीशिएशन भी बहुत, इसमें भी बहुत इसमें ओमिट है, तो हम इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज द स्पीशिएशन? जब भी हम स्पीशिएशन की बात करते हैं, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ओके, हाउ दिस न्यू स्पीशीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, that is what we call it as speciation। okay, then we have two topics, evolution and classification। so how would you relate these two topics? okay, so classification की अगर हम बात करते हैं तो जो भी organisms अगर आपस में similar characteristics share करते हैं तो उसको हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं। ओके, जिनमें ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं हम उनको उस पर्टिकुलर ग्रुप से अवॉइड कर देते हैं, निकाल देते हैं। ओके, सो this suppose if you are taking this prokaryotes and eukaryotes। okay, so prokaryotes they have primitive nucleus, eukaryotes they have well developed nucleus। so primitive nucleus वाले जो भी organisms होंगे आप उनको एक ग्रुप में रखोगे, फिर वेल डेवलप न्यूक्लियस वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे आप उनको एक ग्रुप में रखोगे। अब बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स में मान लो, तो प्रोकैरियोट्स में जो बैक्टीरिया होगा उसमें से भी आप सेग्रीगेट करोगे ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रोपिक मींस जो अपना खाना खुद बना रहा है, और हेटेरोट्रोपिक जो कि डिपेंडेंट है। तो इस तरह से आप क्लासिफाई करते हो ऑर्गेनिजम्स को इनटू देयर ग्रुप। व्हाट यू फॉलो इज द पैटर्न ऑफ हायरार्की। ओके, एक आप एक हायरार्की का पैटर्न फॉलो करते हो जहां पे आप बेसिक सिमिलैरिटीज को कंबाइन करके एक ग्रुप बनाते हो एंड यू कैन मूव अहेड। आप आगे आगे बढ़ते जाओगे जैसे जैसे सिमिलैरिटीज घटती जाए। ओके, सो द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स टू स्पीशीज विल हैव इन कॉमन। दो स्पीशीज के पास ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन में है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। ओके, एंड इफ दे आर क्लोजली रिलेटेड, सो हम ये भी बोल सकते हैं कि मे बी दे विल हैव अ कॉमन एंसेस्टर। एक ही एंसेस्टर में से वो ओरिजिनेट हुई होगी, इवॉल्व हुई होगी। ओके, सो जैसे कि ब्रदर एंड सिस्टर्स आर क्लोजली रिलेटेड, वेरी क्लोजली रिलेटेड, सिबलिंग्स आर क्लोजली रिलेटेड, देन यू हैव योर कजिन्स, देन यू हैव योर कजिन्स लाइक दैट। ओके, सो आप ऐसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपकी सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी। व्हेन यू कम टू योर क्लोजेस्ट लेवल, वहां पे आपकी सिमिलैरिटीज बढ़ जाएंगी। ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस वी हैव टू ट्रेस द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वुड बी सिमिलर। ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में क्या होंगी? सेम होंगी। सेम होंगी तो क्यों होंगी? क्योंकि हम ऐसा बोल सकते हैं कि दैट दे हैव इनहेरिटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। वो एक कॉमन एंसेस्टर से इनहेरिट हुई है। ओके, सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ले लो कि मैमल्स के पास 4 लिम्स हैं, उसी तरह से बर्ड्स के पास भी हैं, रेप्टाइल्स के पास भी हैं,
एम्फीबियंस के पास भी है। ओके, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इट इज सिमिलर, बट इफ यू गो ऑन looking onto the function, each one is having different functions. Okay, basic structure same है लेकिन function अलग अलग है। जैसे हमारे पास जो limbs हैं, we use it for walking or gripping, birds use it for flying, okay, then reptiles use it for crawling। तो उस तरह से अगर आप देखोगे तो है तो बेसिक स्ट्रक्चर सेम, लेकिन फंक्शन अलग अलग परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलेंगे होमोलोगस कैरेक्टर्स। सिमिलर स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शन, होमोलोगस कैरेक्टर्स। ओके, देन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसका रिवर्स, पहले वाला क्या था, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। अब यहाँ पे आप देखोगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन। सो ऐसे वाले को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप बोलोगे एनालॉगस। सच कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज एनालॉगस। एग्जांपल अगर आप देखो तो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स। विंग्स आप देखोगे बर्ड्स और बैट्स के, दोनों के विंग्स फ्लाइंग में काम आते हैं। ओके, फंक्शन सेम है, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर देखने को जाओगे तो इट विल बी डिफरेंट। ओके, सो जो होमोलोगस कैरेक्टर्स हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि दैट दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स। बट अगर हम एनालॉगस कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो दे डू नॉट हैव कॉमन एंसेस्टर्स। क्लियर? कुछ डाउट है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफन अ डिफरेंस इज आल्सो आस्क्ड, homologous and analogous characters. क्लियर है? यस और नो? ये एग्जाम्पल जो आपको बुक में दिया हुआ है वही एग्जाम्पल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, homologous organs and analogous organs. Okay, good. Then let us move to the last part, which is fossils. Now, what are these fossils? These are the dead remains of plants and animals. So, mostly आपको अगर कोई particular organism को find out करना हो कि ये past में रहा करता था, या फिर आपको evolution trace करना हो, so you can do it by the study of fossils. So, fossils होता क्या है? ये तो जो dead remains होते हैं, plants के हो या animals के हो, इनको हम बोलते हैं fossils. And these fossils are helpful in tracing the existence of species on earth. बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। जैसे कि आप डायनासोर्स देखोगे तो हम में से किसी ने डायनासोर देखे नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि पहले के जमाने में बहुत पहले डायनासोर्स हुआ करते थे। तो कहाँ से पता पड़ा डायनासोर्स हुआ करते थे? इट इज बिकॉज ऑफ द फॉसिल्स। डायनासोर खुद तो एक था नहीं, तो ये जो फॉसिल्स है उनके फुटप्रिंट्स, उनके फीकल पैलेट्स, ओके, उनके इंप्रेशंस देखने को मिले थे, एंड वहां से पता पड़ा कि अच्छा डायनासोर्स जैसे कोई स्पीशीज भी अर्थ पे रहा करती थी। तो ऐसे बहुत सारी स्पीशीज हैं जो अभी भले एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन हम उनके बारे में पढ़ सकते हैं फॉसिल्स के थ्रू। ओके, सो देखो, व्हेन द ऑर्गेनिजम्स डाई, their bodies will decompose, उनकी बॉडी सड़ जाती है and it will be lost. Okay, but sometimes it does happen that body or at least some part may be in an environment that does not let it decompose completely. ऐसा कोई एक पार्ट होगा या कोई एक ऑर्गन होगा या फिर एक कोई भी बॉडी का एक हिस्सा होगा that will not be decomposed completely and it get caught in the mud. Okay, so अब ये डिकम्पोज नहीं होगा और ये जो हॉट मड में अगर जमा हो गया, रह गया, तो उसकी एक इम्प्रेशन बन जाएगी. इट विल हार्डन एंड इट विल फॉर्म एन इम्प्रेशन इन दैट पर्टिकुलर मड पार्ट. सो ये जितनी भी इम्प्रेशंस हैं दे कैन बी प्रिजर्व एंड दे कैन बी ट्रेस्ड. इनको हम बोलेंगे फॉसिल्स. ओके, सो ये जो इम्प्रेशंस हैं इनको हम स्टडी कर सकते हैं, हम एज डिटरमाइन कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म की इम्प्रेशंस है. सो ऑल दीज स्टडीज आर द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. ओके, इस तरह से आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं. ट्री ट्रंक, इनवर्टिब्रेट एमनोइड, ट्राइलोबाइट, डायनासोर्स, देन नाइटिया, फॉसिल फिश, ये सारे एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं. एंड देन देयर is a method available through which you can estimate the age of the fossils. So एक तो है रिलेटिव मेथड. रिलेटिव मेथड मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको डिग करते जाना है और वो डिगिंग के बेसिस पे आपको
पता चलेगा। आप यू नो यू हैव दिस एक्सकवेशन साइट्स जहाँ पे आप कोई हेरिटेज साइट्स देखोगे तो वहां पे व्हेन यू गो ऑन डिगिंग 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 तो आपको वहां से कुछ मिल जाता है, सडनली वो जो चीज मिल जाती है आप उसको स्टडी करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि अच्छा ये स्पीशीज वहां पे रहा करती थी। ओके, एंड अनदर वे इज बाय रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक। वहां पे हम आइसोटोप्स यूज करते हैं। सो आइसोटोप्स यू नो यू माइट हैव स्टडीड इन योर केमिस्ट्री, same they are with the same molecular formula. Okay, isotopes. So these isotopes can be used, and through the radiations, through the half life, you can detect the age of the fossils. Okay, and so with this we are through with the chapter. Any doubts?